Welcome to the Muluka Academy. So today I will deliver the lecture on the linear equation in two variables. This is our second lecture. Yesterday we started this lecture. I have given you the ways to solve a linear equation. So there were two methods to solve it. One is transposition and another is cross multiplication. So in case of transposition, what we did, we have just started, we shifted one variable or one number from one left hand side to right hand side or right hand side to left hand side, and in that case what will happen? So just write first topic, linear equations in two variables. Class 9. So first is transposition. So in this case, when a number changes its position from one side to another side, its sign changes, plus to minus and minus to plus. And multiplication, in case second is cross multiplication. So for example, if we have got A upon B, C upon D, cross multiply to get AD is equal to BC. So we will solve some more questions in that. So first of all is 3 upon x minus 4 3 upon x minus 4 plus equal to x minus 1 upon x minus 4, and x is not equal to 4. So condition given here is x is not equal to 4. Suppose if x is equal to 4, then what will happen? This will be 0, this will be 0. 3 upon 0 is infinity. The number is not defined on left hand side as well as on the right hand side. So in this case, the value of x cannot be equal to 4. Now we cross multiply to get the value 3 into x minus 4, x minus 4 into x minus 1. Now what we can do? We know that the x minus 4 is a factor which is present on both sides. So what we will do? Divide both sides by x minus 4. We get. So what we get? 3 is equal to x minus 1. So 3 plus 1 is equal to x, x is equal to 4. But we are given that x is not equal to 4, since this value is not allowed. Not allowed. So no solution exists. सो इसमें मैं फिर से बता रहा हूँ. तो क्वेश्चन में क्या है? वी आर गिवन इन द क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड सॉल्व फॉर एक्स. सॉल्व फॉर एक्स. तो कंडीशन साथ में क्या दी है? एक्स इज नॉट इक्वल टू 4. एक्स की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए. पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 3 इंटू एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4. अब हमने पता लग गया कि दोनों साइड पे x माइनस 4 है, तो उससे हम डिवाइड कर देते हैं. तो क्या आ जाएगा? एक साइड पे 3 आ गया, दूसरी साइड पे x माइनस 1 आ गया. तो अब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, माइनस 1 को राइट से लेफ्ट में, ये 3 प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 1. x की वैल्यू 4 आ गई. लेकिन ये वैल्यू अलाउड नहीं है, क्योंकि हमें कहा गया है x इज नॉट इक्वल टू 4. सो इसलिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा. नो सोल्यूशन एग्जिस्ट. तो इसी में सेकंड क्वेश्चन है, अंडर रूट 5x माइनस 4 अंडर रूट 5x माइनस 4 इक्वल टू 2 रूट 5 प्लस 6. So again we have to find the value of x here. So what we have got? We have got variable on one side minus
Then on other side we have got one rational number and one irrational number. So first what we will do, under root 5x will be equal to 2 root 5 plus 6 plus 4. So this will be root 5x is equal to root 2 root 5 plus 10. Now we can take under root 5x is equal to under root 5 as common, but before that 2 under root 5, this can be written as 2 into root 5 square, because root 5 is equal to 5, 10 is equal to 10, we can write as 2 into 5 and 5 is equal to root 5 square. So just look at this, what I did here, I have broken this 10 into 2 into 5, then 5 can be written as under root 5 square. Now we can first divide the whole equation by root 5 we get. So what do we get here? X is equal to 2 plus 2 root 5. So this will be the answer which we want to get. Okay. Then next is again solve for x, but before that we rub this part. Okay, then next question is solve the equation for x. Third question, solve for x. So इसमें क्या है, 7x minus 1 upon 4 minus 1 upon 3, 2x plus x minus 1 upon 2 is equal to 6 whole and 1 by 3. So you have to get the value for this. So what we will do, first we will solve this bracket. So for solving this bracket we will multiply minus 1 by 3 into the numbers inside the bracket. So this will be 7x minus 1 upon 4 minus 2x upon 3 minus 1 upon 6. So this is x minus 1 is equal to 6 3s are 18 and 1 19 upon 3. Now in the denominator we have got 4 3 6 3 and all these are divisible by the LCM of all these numbers is 12. So we multiply the equation by 12. Multiply by 12 we get. So this will be 3 into 7x minus 1 and this will be 8x. This is minus 2x minus 2 equal to 76. Okay. So this will be 21x minus 3 minus 8x minus 2x plus 2 is equal to 76. Now let us see how many x are there. 21x minus 8x minus 2x, this becomes minus 10x. So 21 minus 10, we are left with 11x. This is minus 1. Minus 3 plus 2 is minus 1 is equal to 76. 11x is equal to 76 plus 1. X is equal to 77 upon 11. So here we have divide by 11. तो इसमें क्या आ गया, ये इससे कट जाएगा
x is equal to 7. So this will be the value, required value after solution. The next is linear equation in two variables. So अब हमें करना है linear equation in two variables. So अब तक जो हमने equations लिखी थी, those were the equations in one variable. So जनरल इक्वेशन इसकी क्या होगी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. जैसे इसमें हमारे पास एक इक्वेशन थी तो उसका यूनिक सॉल्यूशन था, लेकिन वेन एवर वी हैव गॉट इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वी हैव गॉट मल्टीपल और वी कैन से देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस. सो फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू राइट दिस in this is 7x plus 2y plus 3 is equal to 0, 3s 1.5 t is equal to 3, then u minus v is equal to 2, a minus b is equal to 7. All these are the examples of linear equations. सो लीनियर इक्वेशन तो ये भी थी, ये भी है. ये लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें हमारी डिग्री 1 हो. सो यहाँ पे भी x और y की डिग्री 1 है. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद, क्या इसमें खास बात, टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स हैं. ओके, सो दिस इज देयर. सो सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होता है, जो वैल्यू इसको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल कर दे उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं. द वैल्यू विच सेटिस्फाई एन इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. सो अब हमें ये पता करना है, एक इक्वेशन है, कंसीडर करो, लेट द इक्वेशन बी 3x plus 2y is equal to 11. तो इसमें हम चेक करते हैं, x is equal to 2, y is equal to 4. So put x is equal to 2, y is equal to 4, we get, तो क्या आ जाएगा इसमें, 3 into 2, 2 into 4, तो क्या आ जाएगा, this will be 6, this will be 8, this is equal to 14, and this is also I think 14. Yes, this is equal to 14 we are given. So we have seen that 14 is equal to 14. So this satisfy, so we can say that x is equal to 2, y is equal to 4 is solution of given equation. So we can write it as 2, 4. So this is the ordered pair where we can give the value of x first, then value of y. Then we move to the next part, but before that I will wrap this part. So next is we have to show that x is equal to 1, y is equal to 1,
इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है ये, 4x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमने चेक करना है, ये क्वेश्चन है थर्ड फोर्थ, चलो फोर्थ समझ लेते हैं। 4x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो इसमें हमने क्या करना है, वी आर गिवन विद द, इस सॉल्यूशन को चेक करना है, इज दिस सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सो व्हाट वी विल डू, we will put x is equal to 1, y is equal to 1, we will get 4 into 1 minus 1 minus 3 is equal to 0, 4 minus 1 minus 3 is equal to 0, 4 minus 4 is equal to 0, 0 is equal to 0. So x is equal to 1, y is equal to 1 is solution of equation. So ये इसका सॉल्यूशन है। देन नेक्स्ट इज, अगर हम 2 और माइनस 5 इसमें पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 2, इसको चेक करना है, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5, तो क्या आ जाएगा, इसको पुट कर लेंगे, क्या आएगा, 4 इंटू 2 माइनस 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, क्या होएगा, 8 माइनस 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 5 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये भी इसका सॉल्यूशन है। देन नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब हमने ये बताना है कौन सी इक्वेशन 1 वेरिएबल में है और उसका यूनिक सोल्यूशन है, और कौन सी इक्वेशंस जो हमारे पास 2 वेरिएबल में जिसका सोल्यूशन दूसरा है, मींस जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। सो इसमें हमें ये 3 पार्ट दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, x प्लस 1 इज इक्वल टू 6, तो इसमें चेक करो क्या आएगा, x will be equal to 5. So this is linear equation in one variable, linear equation in one variable, and it has unique solution. तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, 1 वेरिएबल में है। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में हमें दिया है ये y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इक्वेशन, linear equation in 2 variables, कौन कौन से है, x and y। so it has infinite many solutions, many solutions। so अगर हमने चेक करने हो कोई 1-2 सॉल्यूशन तो क्या आएंगे, जब हम x की वैल्यू 1 भरते हैं, x इज इक्वल टू 1 के लिए क्या आएगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 2, सो दिस विल बी 5, एक सॉल्यूशन हो गया 1,5। अगर x की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 2, 6 एंड 2 8, सो दिस विल बी 2,8। x इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 2, 9 एंड 2 11, सो 3,11। So in such way there are number of solution, it has got infinite many solutions, we can get as many number of solutions। Then next is y upon x is equal to 2, थर्ड पार्ट में क्या है, y upon 2 is equal to x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा,
by cross multiply we get y is equal to 2x। ये हमारा इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 y से मल्टीप्लाई होगा, y इज इक्वल टू 2x। सो इसको हम 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। सो अगेन लीनियर इक्वेशन इन 2 variables, so it has infinite, तो इसके infinite many solutions, बहुत से solution हो गए इसके। कौन कौन से हो सकते हैं? y इज इक्वल टू 2x है, अगर हमारी x इज इक्वल टू 1 है तो y क्या होगा? 2 होगा। x इज इक्वल टू 2 है तो y कितना होगा? 4 होगा। x इज इक्वल टू 3 है तो y कितना होगा? 6। x इज इक्वल टू -5 है, y कितना होगा? -10 एंड सो ऑन वी कैन हैव एनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सो likewise we can have infinite many solutions। तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं इसी तरह से। ओके सो इसी तरह के इसके आगे क्वेश्चंस हैं, बट बिफोर दैट आई विल रब द दिस बोर्ड। सो इस तरह लाइकवाइज वी हैव गॉट नेक्स्ट। सो आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है, एप्लीकेशंस भी कह सकते हैं इसकी लीनियर इक्वेशन की। सो पहले हम इसको लिखेंगे, फिर इसकी हम लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। हमें क्या दिया हुआ है? द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। सो क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ ए notebook is twice the cost of pen। तो अब इसमें हमने क्या करना है? राइट द इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स यूजिंग टू रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन। सो राइट एन इक्वेशन इन 2 variables to represent the statement। सो आगे हमारे पास इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आएंगे नेक्स्ट हायर क्लासेस में भी, जब हमें एक क्वेश्चन को उसको मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करना होता है। तो ये हमारी स्टार्टिंग है। सो यहाँ से हम इसको वेरी केयरफुली देखेंगे कैसे कर सकते हैं। हमें क्या दिया हुआ है? द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। सो इसमें हमारे पास 2 वेरिएबल कौन कौन से बनेंगे? एक तो कॉस्ट किसकी है? नोटबुक की, और दूसरी कॉस्ट किसकी है? पेन की। दोनों को हम मान लेते हैं। तो हम पहले मानते हैं लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज y and cost
ऑफ पेन इज एक्स। एक्स की कॉस्ट हमारे पास, पेन की कॉस्ट तो एक्स रुपीज़ है और नोटबुक की कॉस्ट जो है वाई है। अब हमें कंडीशन की क्या दी है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक ट्वाइस 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन, यही हमें दिया ना। कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स मल्टीप्लाई बाई 2। अब इसमें हम वेरिएबल भर जाते हैं। कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज वाई, वाई इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन क्या है एक्स, सो वाई इज इक्वल टू 2x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द इक्वेशन। देन इसी तरह से नेक्स्ट है, इन वन डे इंटरनेशनल मैच, क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया played in Kolkata, Dhoni and Yuvraj together scored 196 runs. So ये क्वेश्चन क्या है, in an ODI between India and Australia, batsman Yuvraj and Dhoni together scored 198 runs. So अब इसको हमने लिखना है इक्वेशन में। Express this information in form of, express the information in form of equation। इसको इंफॉर्मेशन को हमने इक्वेशन में लिखना है। तो अब हमारे पास क्या है, हमें दिया क्या गया है, इन एन ओडीआई वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच हुआ। बैट्समैन कौन कौन से बैट्समैन दिए हैं, एक तो युवराज है और एक धोनी है। दोनों ने कितना स्कोर किया रन्स, 198 रन्स। तो अब हमें हमारे पास दो वेरिएबल्स कौन कौन से आएंगे, एक तो जो युवराज ने रन स्कोर किए हैं और दूसरा जो धोनी ने रन स्कोर किए, दोनों का कंबाइन करके टोटल कितना आना चाहिए, 198 रन्स। So now we will represent this in equation like this. So first we will assume the variables. Let runs scored by Yuvraj X and runs scored by Dhoni Y। सो हमने क्या कहा, युवराज ने तो x रन स्कोर किए हैं और धोनी ने कितने किए, y। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सो दोनों के रन्स x प्लस वाई किसके बराबर आने चाहिए, 198। दैट इज x क्या है, रन्स स्कोर्ड बाय युवराज, और y क्या है, रन्स स्कोर्ड बाय धोनी। ये युवराज के रन्स हैं, ये धोनी के रन्स हैं, एंड सम टोटल ऑफ दीज इज इक्वल टू 198। सो इफ वी talk about the solution of this equation, this has got many solutions, means runs cannot be in the fractions, so it will be countable. There are finite number of solutions, maybe x is 0, then this is 198, then y is 0, this is 198. So total there will be 198 solutions, because the value cannot be more than 198 and cannot be less than 0. So this is the equation in two variables.
ओके, एंड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 196 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन होगी, जैसे हमारे पास है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू भी 1 आएगी और c की वैल्यू 196। सो दीज आर द 3 वैल्यूज विच आर गेट इनटू दिस। सो आगे हमारे पास जो क्वेश्चंस है उसको भी हमने इसी तरह से ही करना है। मीन्स वी आर गिवन वैल्यूज एंड इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड वी हैव टू राइट फॉर द वैल्यूज ऑफ a, b and c, so that we put for the next session. So up till now what we have studied, we have seen what are the linear equation in one variable, what are the linear equation in 2 variables, how we can write them. If we are given a statement, how we can represent that statement into the equation. And we have also solved some linear equations in one variables, and same is the case with in 2 variables that we will be solving in the next few lectures. So we are attaching a PDF along with this so that you can solve it. You can check your lecture. If you have got any doubt, call us to clear your doubts. So thank you for the listening to the lecture. Thank you very much. Okay. गुड, चले गए। वो गए सर, किधर इधर सर रिकॉर्डिंग लाई हुई सी तो वो बंद करनी सी, पता नहीं वो सही होया कि नहीं होया। मैं आप लो नप तो होर ही कुछ आ गया। नहीं अगला लाना मैं हजे लैक्चर। हाँ एक क्लास रहेगी। अरे मैडम इधर